Good evening, Sakshi. How are you doing? Good evening, sir. I'm doing fine, sir. How are you doing, sir? I'm perfectly fine. Thank you for asking. So tell me, how did you spend your day? Yeah, sir. Today I was out of the house full day, so I couldn't some. What you couldn't? You couldn't finish something? You couldn't finish your work? No, sir. Oh, what was the work otherwise? Actually, I went to my college and I some went coaching. I went to my college. Yeah, sir. Okay, after that? After that, I went to my two coachings. Okay, what are these coachings? Uh, Coaching and my fifth semester coaching. Okay, all right. And what else did you do? Nothing, sir. Uh, Okay, Today I was out of the house full day, so I can't. okay. And what about yesterday? Yesterday, what did you do? Yesterday, after class, I did my work from college. Okay. Yeah. All right, perfect. And did you get time to learn English, speak English with students or your friends around? No, sir. No, you didn't find time for that? No, sir. Oh, then how are you going to practice, Sakshi? Actually मैं 2 दिन से कुछ कर नहीं पा रही हूँ sir. Okay, no, I understand that, but since we are almost towards the end of our session today, and tomorrow is going to be our last day. Nevertheless, Yeah, even after our classes get over, please regularly practice your English, right? I practice. Okay, I will practice. perfect. I can see Pranjal. Good evening, Pranjal. How are you doing? Good evening, sir. I'm fine. How are you, sir? I'm perfectly fine. Thank you for asking. So, how did you spend your day, Pranjal? You went to your school, you did a lot of homework. What else? Sir, I did my handball practice Oh, today? till 4 o'clock. All No, I right. did till Okay. 4:30. Till 4:30. And at what time did you start? 2 o'clock. Oh, after coming back from the school, you did that? In the school Ah, only. on I in the stayed school. in school Okay, only. okay. You stayed in the school itself. So you returned from school at what time today to your home? Sir, usually I come on 4, Right. but today I come on 4:30. But today I came at 4:30. Yes, All sir. right. So did you get time to have your lunch? So we have shared, my Right. friends and I shared the Okay. lunch. Okay. So your stomach is full. You are like okay with everything now. You're not feeling hungry. No, sir. No, great. All right. So we'll get going because if you remember, I had given some homework to all of you. What was that homework? Does anyone remember? What was that homework? Sir, making story. Yeah, making stories. Yeah. कहानियां तो बनाते ही होंगे आप लोग नहीं प्रांजल मैम आज ये हो गया मैम वो हो गया ये छूट गया वो छूट गया नो you don't make up stories Sometimes. sometimes. So you have that creativity, but this time you had to sort of use that creativity in a academic way. Yeah, I can see Sakshi raising her hand. Yeah. Yes, sir. I can't. Yesterday you gave work. Yes. Uh, I can't I see. couldn't. I couldn't. I couldn't saw. I couldn't see. मैं देख नहीं पाई. I couldn't see. Yes, sir. But कब देखा फिर आपने? Did you at all see it? नो सर मैंने बताया आपको मैं आज पूरा दिन बाहर तो I इसलिए was busy the whole day with a lot of things happening around, so I didn't find time to see the messages either. Okay, not a problem. So अभी क्लास में आज आपसे practice करवाएंगे. Okay, I can see Sarita. Good evening, Sarita. How are you doing? Good evening, sir. I'm very good. Perfect.
So Sarita, what did you do today? Tell us. Yes, sir. What did you do today? Today I went for a morning walk followed by breakfast and then did all the work at the place where I work after Okay. that I was my English class and complete my homework. Okay. You completed your homework. Yes, sir. Which homework? Short story. Oh, short story. Okay. You're ready with your short story, Sarita? Yes, sir. Okay, great. We'll see. What about you, Pranjal? Could you do your short story? I couldn't because there's lots of homework and happily Oh, that yes. preparation was going on, so I also came late today. All right. No, I understand. Understand. All right, we'll see. I can see Arvaz and Manshi. Good evening, Manshi. How are you doing? Arvaz, good evening. How are you doing? Fine. Fine. Okay. What about you, Manshi? How are you doing? Manshi, how are you doing? Can you hear me? I cannot hear you, Manshi. Are you saying something? आपकी आवाज नहीं आ रही हमारे तक. Okay. Anyway, I think there's some technical glitch. You can rejoin, perhaps. You can just disconnect and rejoin. Yeah, she did that. Yeah, Sakshi, you want to say something? Yeah, sir, I wrote a short story of Taylor Swift before 2 days. Okay, you want to share it in the end? Yes, sir. Okay, we'll do that. All right. So I welcome you all to our session of our spoken English classes. And since we are heading towards the end of our classes, I thought to make it in a more fun-filled way, today we are going to listen your stories. So are you all ready with your stories? Arvaz, are you ready with your story? No, sir, I forget to write a story, so I forget, yeah, I forgot. I forget to write a story. I forget क्यों बोल रहे हैं आप? I forgot. मैं भूल जाता हूँ या मैं भूल गया? मैं भूल गया, I forget to write. I forgot to write. I forgot to write है ना? I forget नहीं, I forgot to write. I forget to write होता है मैं भूल जाता हूँ. I forgot to write मैं भूल गया. लिखना भूल गया. ठीक है? Oh, you forgot to write a story, but did not I send a message in the group asking you all to write a story? You didn't see my message yesterday, Arvaz? You did? Yes, sir. You did. Okay. But I will write it this time. I will write this time. Okay. Anyway, I'll give you some time to write. Don't worry. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. सर क्वेश्चन है. हाँ बताइए. हेलो. Yeah, tell me. सर जो सर ये आज तो हमारा लास्ट सेकंड है. Yeah. क्लास. Yes. तो सर जो आप मतलब कोर्स था सारे ग्रामर उसको कहाँ हो पाए? उसके अंदर हमारे दो तीन टॉपिक्स बच रहे हैं जो मैं आपको कल करवाऊंगा because I wanted to focus on the pronunciation part and tomorrow we'll be doing some part of I'll just see through it. We are left with 3 to 4 topics which are very short topics, so I'll do them all together right in tomorrow's session. So कल के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप रहिएगा, जुड़िएगा. That will be a run through. That will be a run through of all the grammar topics because मुझे लगता है हमारे पास 3 से 4 टॉपिक्स हैं जो बच रहे हैं, वो मैं कल आपको कल की क्लास में कराऊंगा. That would not take long, but the important part is that you should be there, everyone. Right? So I'll do that. Don't worry. Yeah. But the bigger question comes, क्या आप repeat, revise, practice करते आ रहे हैं पुरानी चीजों को? That is the bigger. Yes, sir. Right. Okay, I can see Deepthi. Good evening, Deepthi. How are you doing? Good evening, sir. I am doing fine, sir. Perfect. So Deepthi, did you find time to write your short story? सर बताइए. ऑनेस्टली सर मैंने ना एआई से लिखवाई है. AI से लिखवाई है, तो अब AI ने आपको क्या बोला कि मैं लिख दूंगा? फिर AI ने क्या कहा, आगे कभी भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो मैं आ जाऊंगा, ऐसा? तो मेरे फिर पास टाइम की शॉर्टेज थी इसलिए मैंने एआई से लिखवा ली. कोई बात नहीं, पर आप बताइए AI ने लिखी, आपके मन की तो बात नहीं है ना, वो तो AI के मन की बात है वो कहानी में. फिर यस. चलिए एनीवे सुनते हैं, AI की बात भी सुनेंगे, आपकी बात भी सुनेंगे. Alright, so I can see Rubina. I'll just let her in. Okay. Alright.
So I can see Rubina. Good evening, Rubina. How are you doing? Sir, fine, sir. How are you? I'm perfectly fine, Sir, Rubina. Thank so you. Thank you so much for asking. So I was just talking to everyone about the fact that did you people get time to work on certain important things like the story that we were talking about? Did you get time to write on the story? no, sir, No. but I will make sir. काम बहुत कम लोग करते हैं. फिर कैसे आप आगे बढ़ेंगे बताइए. सब व्यस्त हैं, सब अति व्यस्त हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. सो एक मैं कहानी आपके लिए लिख के लाया हूँ, उसको हम पहले देखते हैं. आई एम श्योर आपने पढ़ ली होगी. उसके बाद जो हमारे क्लासमेट्स हैं उनकी हम कहानी को सुनेंगे आज. ऑलराइट, ओके. सो आई विल गिव यू क्विक 5 मिनट्स. 5 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट से आप इन टॉपिक्स को देखिए. आई एम सॉरी, इन वर्ड्स को देख के इस कहानी को समझिए फटाफट से. हाँ हाँ, ठीक है. चलिए, टेक 5 क्विक मिनट्स, स्टार्ट. All right. So please look at it. Yes, I think, is that clear to you all? The story, did you get time to read the story otherwise? Yes, did you people, did you get time to read the story? Yes, sir. Oh, you did. Chaliye. So Yes, sir. we'll start asking people. I'll request some of you to read, not everyone, because it's a short story. So this portion could be read by, let's take Deepti. Then we will ask this portion to be read by Rubina. Then this could be read by Arvaz. I don't know if I'll be able to accommodate. Then Sakshi, and this can be done by Pranjal. Okay, Pranjal. Chali. So I'll just move it up so that it's easier for you to read. Chali. Okay, I'm giving you 1 more minute क्योंकि जो पढ़ेगा वो समझाएगा भी. So दीप्ति, पढ़ना भी है, समझाना भी है. रुबिना, पढ़ना है, समझाना है. अरबाज, पढ़ना है, समझाना है. Then साक्षी, पढ़ना है, समझाना है. और अंत में प्रांजल, पढ़ना है और समझाना भी है. Are you ready? Can we start? Yes, sir. Oh, Deepti is all set today. Great. Chaliye, so yeah, Deepti, you could start. Yes, sir. Once upon a time, in a small village, there was a house on top a hill. A little cat named Whiskers lived there with a boy named Sam. One evening, while Sam was drinking a bottle of milk, Whiskers noticed something strange. The grass outside the house was glowing under the light of the moon. It seemed like a small fire was starting near the field. Right. So क्या meaning है इसका? Yes, sir. Yes, sir. एक बार की बात है, एक स्मॉल विलेज था. ठीक है. देयर वाज अ हाउस ऑन टॉप अ हिल. वहां पर हिल के टॉप पर एक हाउस था जिसमें एक छोटी कैट जिसका नाम विस्कर था. देयर विद और एक बॉय था जिसका नाम सैम था. वन इवनिंग, एक शाम, while Sam was drinking a bottle of milk, Sam मिल्क बॉटल से पी रहा था. विस्कर नोटिस समथिंग स्ट्रेंज. विस्कर्स ने कुछ स्ट्रेंज सा, मतलब अलग सा नोटिस किया. द ग्रास आउटसाइड द हाउस वाज ग्लोइंग.
जो घर के बाहर जो घास थी वो चमक रही थी हाँ अंडर द लाइट, मून की लाइट से चमक रही थी. इट वॉज सीम्ड लाइक अ स्मॉल फायर. वो एक छोटी आग की तरह लग रही थी. बिल्कुल ठीक है. फायर वॉज स्टार्टिंग नियर द फील्ड. स्टार्ट a small like a small fire was starting near the field. सर इसका या सो लाइक अ स्मॉल फायर वाज स्टार्टिंग नियर द फील्ड. ऐसा लग रहा था जैसे कि छोटा सा जो छोटी सी आग है, थोड़ी सी आग है जो चालू हो रही थी फील्ड यानी जो खेत है उसके पास में. yes. राइट. ओके परफेक्ट. ऑलराइट रुबीना, ओवर टू यू. Sam immediately realized there was a problem and needed to help. He grabbed his t-shirt and quickly ran outside. As he tried to put out the small fire, birds began to fly away and chirping loudly. या Some तभी तभी रियलाइज किया, मतलब अनुभव किया कि वहाँ पे शायद कुछ प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे हेल्प चाहिए. एग्जैक्टली. एंड तब उसने अपना टी शर्ट को ग्रैब मतलब पहना एंड बाहर बाहर दौड़ के भाग गया वो साइड पे जहाँ पे प्रॉब्लम है. राइट. एंड जब वो जो फायर था उसको निभाने के लिए ट्राई कर रहा था, तो तभी बर्ड्स उड़ना स्टार्ट किया एंड लाउडली चॉपिंग बहुत लाउड. जोर से हाँ. चिल्लाने लगा. हाँ जी बिल्कुल. एक जो वर्ड है ग्रैब, दैट मीन्स उसको पकड़ लेना जोर से, जल्दी से, है ना, ग्रैब करना. सो उसने अपना टी शर्ट ग्रैब किया बिकॉज बाहर आग लगी हुई थी, तो वो फटाफट से उसने अपना टी शर्ट लिया. दैट वे. ऑलराइट अरबाज, ओवर टू यू. Okay. या. Sam's mother, who was working from home, saw what was happening या. सो थ्रू. through the window. Through. सर इस क्लियर नहीं दिख रहा है. मैं आप बताइएगा अगर अब क्लियर है तो. या इज इट विजिबल नाउ अरबाज? Yes, sir. She was busy in her office typing on the laptop for her English class. She rushed out. She rushed out. Rushed out, and together they managed to put out fire. माँ थी जो ऑफिस में काम कर रही थी, घर से काम कर रही थी, और देखिए व्हाट हैपनिंग, क्या हो रहा है. राइट. खिड़की के. हाँ. वो बहुत ऑफिस में, वो अपने ऑफिस में बिजी थी और लैपटॉप पे टाइपिंग कर रही थी, इसलिए she rushed out. सर क्या मतलब होता है रश आउट करना? रश्ड आउट, एनीवन बताइए कौन बता सकता है रश्ड आउट? आई जस्ट रश्ड आउट. टू रश आउट. सर भागना. हाँ, बाहर भागना. आउट, बाहर भागना. वह भागी आउटसाइड की तरफ. टुगेदर मैनेज्ड टू पुट आउट द फायर. उसने मैनेज की पुट आउट द फायर को. हाँ, पुट आउट करना मतलब पता नहीं. एनीवन? बुझाना. हाँ एग्जैक्टली. पुट आउट, आज को बुझाना. बुझाने के लिए हम पुट आउट जो है वो यूज में लेते हैं. पुट आउट, राइट. पुट आउट, पुट आउट, रश आउट. तो ये आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है. बाहर जाने के लिए रश आउट, जल्दी से बाहर निकलना. एंड पुट आउट, उसको बंद कर देना. वेरी गुड. आगे बताइए. वी हैव साक्षी. Yeah. After everything settled, Sam sat down to add a sandwich. His mother asked, "How did the fire start?" Sam had no idea.
Maybe it was the king of the forest sending us a signal, joked his mom. सब कुछ ठीक हो जाने के बाद सैम सैंडविच खाने के लिए बैठ गया। उसकी मम्मी ने पूछा आग कैसे लगी। सैम को कुछ पता नहीं था। शायद जंगल के किसी राजा ने कोई संकेत भेजा हो। उसकी मम्मी ने मजाक में कहा। हाँ एग्जैक्टली मजाक में कहा। दैट्स ट्रू। सो जब सब चीजें सेटल हो गई तो सैम भी बैठ गया एक सैंडविच खाने के लिए। उसकी मम्मी ने पूछा हाउ डिड द फायर स्टार्ट, आग कैसे लगी। तो सैम को कोई आइडिया नहीं था, तो उसकी मम्मी ने मजाक करते हुए कहा शायद जो राजा था ऑफ द फॉरेस्ट उसने सेंडिंग अस अ साइन, वो हमें कोई संदेश भेज रहा है, यू नो, मजाक करते हुए। चलिए अंत में वी हैव प्रांजल। Later that night, while browsing the internet, Sam found out that the fire was caused by the reflection of the moonlight on a broken glass bottle. He was relieved that the problem was solved and decided to name his cat Moon in honor of that eventful night. उसके उस रात के बाद browsing the internet, जब वो इंटरनेट पे देख रहा था, सैम फाउंड आउट फायर वाज कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन, मतलब सैम को पता चला कि वो जो आग लगी थी वो किसी रिफ्लेक्शन की वजह से लगी थी ऑफ द मूनलाइट ऑन ए ब्रोकन ग्लास, वो टूटे कांच पे लगी थी। He was relieved that the problem was solved. वो मतलब उसको अच्छा लगा, मतलब उसको अच्छा फील हुआ कि प्रॉब्लम अब सॉल्व हो गई है। राइट। तो उसने सोचा कि उसकी कैट का नाम मून रखा जाए उस इवेंटफुल नाइट के बाद। Absolutely perfect, great. So I think you all got a hang of this story. आपको समझ में आ गया। ये जो 20 शब्द थे उनको हमने काम में लेके स्टोरी बनाई थी, एंड आई एम श्योर आपने भी ये स्टोरी बनाने का प्रयास किया होगा, पर बहुत सारे लोग शायद बना नहीं पाए, व्हाटएवर द रीजंस वर। सो इस एक्टिविटी को हम कल के दिन पे डालते हैं, और जो कल करने चाह रहे थे वो आज करते हैं। कुछ एक्टिविटीज हैं, कुछ ग्रामर के टॉपिक्स हैं जो हमारे बच रहे हैं, वो मैं आज आपको चालू करवाता हूँ, सो दैट अगर कुछ एक आध बच जाएगा तो हम कल कंटिन्यू करेंगे। सो ये टॉपिक पे आई थिंक कितने लोगों ने लिखा, आई वॉज इन्फॉर्म्ड बाय Rubina, you have done it, right? Deepti? दीप्ति ने तो AI यूज किया है। सो दीप्ति अब आपको रियल इंटेलिजेंस काम में लेनी पड़ेगी, RI, AI नहीं, RI के साथ आप लिखेंगे और कल सुनाएंगे। एंड व्हाट अबाउट यू रुबिना? You have done it, the story? No, you haven't written it. कोई बात नहीं, तो आज की क्लास में हम इसको स्किप करेंगे, इसको कल की क्लास जो आखिरी क्लास होगी उसमें देखेंगे। तो आज हम एक काम करते हैं, we'll quickly move ahead with some of the topics that are left, और फिर मैं आपके लिए लास्ट में कुछ एक्टिविटीज लेके आया हूँ। अगर समय रहेगा तो आज करूंगा एक्टिविटीज, नहीं तो कल फन फिल्ड वे में उन एक्टिविटीज को करेंगे इंग्लिश में। सो हमारा अगला टॉपिक है, सॉरी, tomorrow is our last day. So see all everything comes to an end. So मैं इसीलिए कह रहा था और कह रहा हूँ और कहता रहूंगा, चाहे डे लास्ट हो पर पढ़ने का दिन वो लास्ट नहीं है। You have to keep studying. That's very important, right? Okay. So with that we'll quickly move ahead. आज मैं आपको सिखाऊंगा adjectives. ये जो टॉपिक है ये बेसिकली आप इनको काम में लेते आ चुके हो अभी तक। अब हम इनको सिर्फ फॉर्मूले का नाम समझेंगे और ये क्या होते हैं वो समझेंगे, क्योंकि इससे आपको ग्रामर टॉपिक तो आपके सारे हो गए, आपके टेंसेस हो गए और कंडीशनल आई एम सॉरी मॉडल वर्ब्स वगैरह हो गए। अब हम देखेंगे एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब्स क्या होते हैं, उसको हम देखेंगे। तो और फिर मैं आज आपको करवाऊंगा एक टॉपिक जिसको हम बोलते हैं इंपेरेटिव, ऑर्डर कैसे देते हैं, और लास्ट में मैं थोड़ा सा कंपैरिजन आपको करवाऊंगा जब हम किसी से कंपेयर करते हैं किसी चीज को। तो एडजेक्टिव्स बताइए, कौन जानता है एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हिंदी में नाम याद है इसका, क्या होते हैं एडजेक्टिव्स? किसी को याद है एडजेक्टिव्स? सर वो अच्छा किसी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो यूज करते हैं। एब्सोल्युटली, हाँ किसी ने अच्छा बोला, कौन बोला अच्छा? किसी गुण को बताने के लिए एडजेक्टिव यूज होता है, हाँ जैसे कि अच्छा वेरी गुड, एब्सोल्युटली। सो आप बताते हो गुड, बिग, स्मॉल,
हाँ, फाइन, स्वीट। हिंदी में बोलते हैं विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए उसको बोलते हैं विशेषण। सो दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव तो आपको सबको पता है कि ओ देयर वाज अ ब्यूटीफुल हाउस, शी हैड लॉन्ग हेयर, दे हैड ग्रीन हैंड्स, उनके हरे हाथ थे, जो भी थे वो, तो वो जो हरा लंबे बाल या फिर वो जो ब्यूटीफुल उनका घर था, तो ये सारे शब्द होते हैं एडजेक्टिव्स। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम तब आती है हमारे को अंग्रेजी में जब हमें कोई कहता है कि आपको उसको अरेंज करना है। सो अरेंज करने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। जब कभी भी खूब सारे एडजेक्टिव साथ में आ जाते हैं तो हम उसको कैसे रखेंगे, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे को रखना होता है क्वांटिटी। सबसे पहले हम चलते हैं इसकी क्वांटिटी पे। ओके, हाउ टू अरेंज एडजेक्टिव्स। ये जब मैं बात करता हूँ ना हाउ टू अरेंज एडजेक्टिव्स का मतलब है इसको कैसे रखेंगे। 4 नीली बोतलें या नीली 4 बोतलें, ये ना हिंदी में तो आपको पता है, तो 4 नीली इटालियन बोतलें या 4 इटालियन नीली बोतलें, तो ये कैसे हम रखते हैं इन एडजेक्टिव्स को, उसको हम समझेंगे। बिकॉज एडजेक्टिव्स आपको पता है, इसलिए मैंने टॉपिक को एकदम लास्ट में रखा, बिकॉज ये टॉपिक सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए कि अच्छा ओके सर ये तो मुझे पता है, अ बिग हाउस तो बिग एडजेक्टिव है, ठीक है, ये आपको पता था। सो अब हम इसको समझते हैं कि हाउ टू प्लेस देम। सो सबसे पहले हम क्वांटिटी को रखते हैं। क्वांटिटी कितनी संख्या है, 1 है कि 2 है कि 4 है, कितनी है। उसके बाद आपका क्या ओपिनियन है, हम उसके ऊपर ओपिनियन, ठीक है, आपका क्या ओपिनियन है उसके बारे में। फिर उसका साइज, उसका साइज क्या है उस चीज का, छोटा है बड़ा है, किस प्रकार से उसका साइज है वो हम देखते हैं। ओके, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर हम बात करेंगे उसकी एज, वो कितना नया है पुराना है, ये हम डालते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं उसके शेप की, कलर की और ओरिजिन की। उसका शेप क्या है, उसका कलर क्या है, उसका ओरिजिन क्या है, वो किस कहां से आया है, और अंत में उसका मटेरियल और पर्पस। अब आपको सर ये तो बहुत ही मुश्किल तो नहीं हो गया क्या, मटेरियल और पर्पस। ओके, तो जब कभी भी आप किसी के बारे में बात करेंगे, किसी भी नॉन लिविंग थिंग के बारे में जनरली इतनी क्वालिटीज आती हैं, तो हम इसको ध्यान रखेंगे कि वो कितना है संख्या में, हाउ मेनी। ओपिनियन, आपको क्या लगता है वो ब्यूटीफुल है या नॉट सो ब्यूटीफुल है, या वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, आप क्या सोचते हो उसके बारे में। फिर उसकी साइज, वो छोटा है बड़ा है, हाउ ओल्ड, वो नया है पुराना है, शेप क्या है, वो राउंड है या स्क्वायर है या क्या है उसका शेप। उसके बाद हमें बताना है कि उसका कलर क्या है, रंग की बात करेंगे। फिर वो कहाँ से है, राइट, कौन से देश से, इटालियन है, जापानीज है, फ्रेंच है, अमेरिकन है, और उसका मटेरियल क्या है, और अंत के अंदर हो जाएगा हमारे पास उसका पर्पस। चलिए, सो मैं अब आपके लिए एक वाक्य, हाँ ये आगे पीछे नहीं हो सकते दीप्ति, है ना, ये इसी क्रम में चलेंगे। मतलब वाक्य में जब आप ऐसे जमाओगे ना तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपको ऐसे चलना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, समझ गए आप। मैं एक देता हूं मैं आपको शब्द, एक वाक्य बताता हूं। ओके, आई बॉट, मैंने खरीदा, ठीक है। अभी आप दिमाग लगाइएगा, अच्छा ऊपर एडवर्ब लिखा हुआ है, उसको भी एक बार छोड़ देते हैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो, वरना पीडीएफ में आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको हटा देते हैं, ठीक है, इसको बाद में देखिए, इसको भी यहाँ से हटा दें। ओके, चलिए अब आप एक चीज देखिएगा, मैं क्या करता हूँ, अरबाज एंड एवरीवन, आई जस्ट पुट द वर्ड्स। अब आपको अरेंज करना है, ठीक है, आप अरेंज कीजिएगा। सो इट्स गोइंग टू बी लार्ज टू ब्यूटीफुल, मैं सिर्फ शब्द लिख रहा हूं, ठीक है। ब्लू इटालियन राउंड, ओके, और एक यहां शब्द लिखता हूं, यहाँ पे सारा मैंने छोड़ दिया स्पेस, और अंत में कुर्सियां लिख दी मैंने, चेयर्स। तो अब देखिए आराम से, अभी मैंने पूछा नहीं आपसे सवाल, अभी जवाब आपको देना नहीं है, अभी आप देखिए। सो मैंने टोटल जो शब्द लिखे उनकी संख्या है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब क्या किया मैंने, अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, इधर मैंने आपको संख्या लिख दी कि क्या क्या कैसे अरेंज होगा।
एंड जो मेन पर्पस है, एवरीवन ध्यान दीजिएगा, आई बॉट चेयर्स, मैंने कुर्सियां खरीदी, ठीक है। अब उन कुर्सियों की विशेषता क्या है रुबिना? राउंड भी है, 2 है संख्या में, नीली भी है, खूबसूरत भी है, इटालियन है, लकड़ी से बनी हुई है और लार्ज है। अब आपको क्या करना है, आपको इनको नंबरिंग देनी है और फिर फाइनल वाक्य जमाना है। तो सब लोग अपने आप करिए इस काम को फटाफट से। इसमें देखते हुए संख्या कितनी है, ओपिनियन क्या है आपका, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। 1 2 3 4 देना है आपको, है ना। तो मैं पूछूंगा नंबर 1 क्या होगा, नंबर 2 क्या होगा, तो आप मुझे बताएंगे। ओके सो wait, let me ask, yeah, so who all want to respond for number 1? number 1 बताइए, हाथ खड़ा कीजिए, I'll ask you, raise your hands. we'll do it, please. yeah, अरबाज बताइए। Sir, give me 2 minutes more. okay, ठीक है, let Rubina do. इसको ध्यान में रखिएगा रुबिना, नंबरिंग्स 1 से 9 तक, और वहां पे ढूंढिए क्या है। He's done, sir. ओके चलिए, इसमें फिर और भी ट्विस्ट डालेंगे। ओके सो क्वांटिटी के हिसाब से नंबर 1, एनीवन, अरबाज बताइए नंबर 1 क्या है। क्वांटिटी 2 हो जाएगा, बिल्कुल। जो संख्या है ना वो पहला शब्द आएगा, 1 नंबर, ठीक है। चलिए नंबर 2 पे साक्षी बताइए क्या आएगा नंबर 2 पे। Yes, sir. 2. Opinion. हाँ तो ओपिनियन बताइए ना, इनमें से कौन सा ओपिनियन है। 2. TWO. बेटा वो तो संख्या हो गया ना, नंबर है, वो तो 1 नंबर हो गया ना। सबसे पहले संख्या को देखेंगे ना, क्वांटिटी को, तो एक संख्या नंबर जो 2 है ना वो पहला है। मैंने 2 कुर्सियां खरीदी, 2 कैसी कुर्सियां खरीदी वो बताना है। कैसी थी वो 2 कुर्सियां, ओपिनियन बताइए दीप्ति। Italian. ओहो, वो तो ओरिजिन है भाई, किस देश से आई हैं बताइए प्रांजल। Sir, wooden. सुनिए एक बार रुक जाइए सब लोग, नहीं वेट लेट मी टेल यू। सुनिए पहले, फिर सुनेंगे, शायद होता है आपको आंसर। संख्या 1 है कि 2 है कि 3 है कि 4 है 5 है, कितनी वो चीजें हैं। ओपिनियन, सुंदर है कि बदसूरत है कि प्यारा है कि निराला है कि अजीब सा है। साइज, छोटा है, बड़ा है, मोटा है, पतला है, क्या है। एज, नया है, पुराना है, प्राचीन है, नवीन है, क्या है। शेप, गोल है, चौकोर है, लंबा है, कैसा है। कलर, नीला है, काला है, भूरा है, पीला है। ओरिजिन, इटालियन है, अमेरिकन है, चाइनीज है, कौन सा उसका ओरिजिन क्या है। मटेरियल, वुड का है कि ग्लास का है कि स्टोन का है कि सैंड का है। पर्पस, किस पर्पस क्या है, क्या वो पेंटिंग वाली कुर्सी है, पेंट करने के लिए कुर्सी है, या वो ट्रॉली वाली कुर्सी है, या उसका पर्पस क्या है, ठीक है। अब ठीक है दीप्ति, अब आप बताओ। Beautiful. हाँ Beautiful. ब्यूटीफुल, आपका ओपिनियन है ना, आपको लगती है ब्यूटीफुल तो 2 नंबर। हो सकता है सबको नहीं लगे ब्यूटीफुल, तो आपको लगती है तो ब्यूटीफुल। चलिए रुबिना तीसरा बताइए, हाथ रेस करिए सब लोग, मैं पूछता रहूंगा। रुबिना। Round. हाँ राउंड, ओके दैट्स करेक्ट, राउंड हो जाएगा हमारा थर्ड। पर हमारा साइज है ना, Round shape में नहीं राउंड तो शेप में आएगा ना, साइज। है, large. हाँ लार्ज, ओके लार्ज, ओके। नेक्स्ट प्रांजल बताइए नंबर 4 पे, या नेक्स्ट कौन सा होगा। हो Wooden. बेटा वुडन तो मटेरियल है ना, यहाँ पे जाओगे उससे पहले देखो ना, खूब सारी चीजें और रह गई। सुनो प्रांजल बेटा, देखो ऐसे चलना है, पहले क्वांटिटी ढूंढनी है। क्वांटिटी क्या है, नंबर 2 था तो वो पहला आ गया, ठीक है। ओपिनियन क्या है, ब्यूटीफुल है तो वो नंबर 2 पे चला गया। साइज है लार्ज तो नंबर 3 पे। एज का कोई शब्द है क्या जो नया पुराना बता रहा हो, कोई भी है ऐसा प्रांजल, नहीं है, तो एज हट गया। शेप बताओ, शेप है कोई, Round. राउंड, बस तो ये नंबर 4 हो गया। यानी इसके अनुसार 4 नहीं, इसके अनुसार 4, मतलब चौथे नंबर पे ही आएगा, ठीक है। ओके उसके बाद हाथ रेस कीजिए, साक्षी आप बताओ राउंड के बाद।
The blue. हाँ कलर आएगा ना, वेरी गुड। तो ब्लू हो गया 5वें नंबर पे। और बताओ नेक्स्ट कौन हाथ रेस करेगा? अरबाज बताओ, अरबाज बताओ। इटालियन, हाँ इटालियन 6ठे नंबर पे आ गया। रुबीना आखिरी बताओ। वुडन, ठीक है। तो हमारा फाइनल वाक्य बना, कैसी कुर्सियां खरीदी है भगवान, ऐसी कुर्सियां कौन खरीदेगा? आई बॉट 2 ब्यूटिफुल लार्ज राउंड ब्लू इटालियन वुडन चेयर्स। ठीक है, समझ में आ गया सबको? Yes, sir. हाँ, तो ऐसी कुर्सियां खरीदोगे ना आप दीप्ति, तब ऐसी बातें करोगे। ठीक है, तो मैंने 2 खूबसूरत सी बड़ी सी गोल सी नीले रंग की इटालियन लकड़ी वाली कुर्सियां खरीदी। ठीक है, समझ में आ गया सभी को? तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर मैं इसमें 2-3 और शब्द जोड़ दूं, मैं क्या क्या छूट गया हमारा? एक तो एज छूट गई और एक पर्पस छूट गया, है ना? साथ ही तो है हमारे पास, 2 और छूट गए। तो मैं मान लीजिए एक और कहता नई कुर्सियां ली, एकदम न्यू, तो न्यू डाल देता। नहीं न्यू क्यों, ओल्ड नहीं, ओल्ड करता हूँ ना, कि पुराने जमाने की कुर्सियां लेके आया मैं, ओल्ड है ना, ओल्ड है, पुराने जमाने की है। और पर्पस वो है हाँ सिटिंग। वैसे ना बैठने के लिए होती है कुर्सियां, पर चलो कोई बात नहीं। आर्म चेयर्स, यू नो, सिटिंग चेयर्स, सिटिंग चेयर्स है, मतलब उनका जो है वो सिटिंग पर्पस के लिए है, कोई और पर्पस के लिए नहीं। पर चेयर्स तो पेंटिंग चेयर्स कर लेते हैं। पेंटिंग क्यों? मान लो वो पेंटर है, उसको वो जो ऊंची वाली कुर्सी आती है, आप जानते हो, मेरे को नहीं पता उनको क्या बोलेंगे, बट आई थिंक उनको पेंटिंग चेयर, मतलब ऊंचाई पे होते तो बैठ के मैं पेंट करना चाहता हूँ, वरना नीचे वाले पे तो उसको पेंटिंग चेयर्स बोल देते हैं। तो उसका पर्पस क्या है? पेंटिंग करने का है ना, पेंटिंग चेयर्स है। ठीक है, अब बताओ कौन बोल सकता है फाइनल, फाइनल सेंटेंस कौन बोलेगा? हाथ रेज कीजिए, फाइनल सेंटेंस कौन बोलेगा? दीप्ति आपको बोलना है फाइनल सेंटेंस? मुझसे पूछेंगे? हाँ, आप बताना चाहेंगे पूरा फाइनल सेंटेंस 9 के 9 विशेषण को कैसे डाल के बोल, ट्राई कीजिए। I brought 2 beautiful हाँ round, no sir, large. हम्म। I brought 2 beautiful large round नहीं, राउंड से blue पहले सुनिए सुनिए, राउंड से पहले ओल्ड आ चुका है अब। old हाँ, ओल्ड के बाद राउंड। round blue Italian wooden painting. No sir. हाँ सही है, Wooden painting. Wooden painting chair. चेयर्स, परफेक्ट। आई होप इतना बोले तो सामने वाला रुका रहे हमारी बात सुनने के लिए, तब तक वो चला जाए तो अलग बात है। चलिए, क्लियर है सभी को? अरबाज, इज दैट ओके? साक्षी? Yes, sir. पर ऐसे बोलता कौन है? इतने 9 के 9 विशेषण डाल के कोई बात बोलेगा? है कोई वाक्य आपके पास इतना सुंदर सा वाक्य? फटाफट से बनाइए एक वाक्य, जल्दी से देखते हैं कौन ज्यादा अधिकतम कौन बना सकता है। 9 के 9 कौन काम में ले सकता है? ट्राई कर सकते हैं आप इसी प्रकार का कोई वाक्य है? रुबीना, एनीवन? आई एम गिविंग यू क्विक 2 मिनट्स, 2 मिनट है अरबाज, बनाइए। पर थोड़े चेंज करना वर्ड्स को, ब्यूटीफुल की जगह कुछ, 2 की जगह कुछ, रंग बदलना, इटालियन की जगह कुछ और करना। About 2 books. आई बॉट 2 बुक्स, 2 books. तो बस खत्म, 2 किताबें खरीदी आपने, 2 में खत्म कर दिया काम। ये बाकी की विशेषताएं कौन डालेगा? 2 नीली जर्मन किताबें, 2 नीली जर्मन पढ़ने वाली किताबें, 2 फिर नीली की जगह 2 प्यारी सी, यू नो, ओपिनियन, प्यारी सी बड़ी पुरानी गोल नीली जर्मन कागज के पन्नों वाली या प्लास्टिक के पन्नों वाली आई डोंट नो पेंटिंग वाली किताबें खरीदी। तो इस प्रकार, बट इट्स गोइंग टू बी टू क्लमजी एज अ सेंटेंस, नो वन वुड से दैट, बट ठीक है, फिर भी अगर आपको 2-3 पिक करने हो तो आप अरेंज कीजिएगा, राइट? एनीवन हु वांट्स टू ट्राई? रुबीना, आप कोई ट्राई करना चाहते हैं सेंटेंस, या क्लियर है आपको? सॉरी रुबीना, आई कुडंट गेट दैट, क्या कह रहे हैं आप? Sir, give me 2 minutes. Okay, I am giving you 2 minutes. Everyone,
2 मिनट लीजिए और फिर बताइए आपको कोई सेंटेंस समझ में आता है तो। ऑलराइट, सो चलिए दीप्ति, देखते हैं कितना बड़ा चैलेंज लेंगे आपकी। पहले बताओ संख्या कितनी डाली आपने, कितने लोगों की, मतलब कितने वैरायटी के एडजेक्टिव्स हैं? 9 के 9 लिए कि 5 लिए? सारे, हाँ, सारे। ओहो, अब भाई सब लोग अलर्ट हो जाइए, बहुत भारी भरकम सेंटेंस आ रहा है दीप्ति जी की तरफ से। बताइए दीप्ति। Sir, I brought two small, I bought two small, 2 small new, new thick, okay, thick pink, okay, Indian, all right, silk, silk, sleeping pillow. clipping, sleeping pillow, okay, sleeping pillow, ऐसे, oh हाँ, sleeping pillows, ठीक है, हाँ ठीक है, स्लीपिंग पिलोज। वैसे तो आजकल लोग फाइटिंग पिलोज भी लाते हैं, आपको पता है दीप्ति, फाइटिंग करना मस्ती वाले, तो उसमें फाइटिंग पिलोज भी हो जाते हैं, क्योंकि जनरली क्या होता है कि ये तो अंडरस्टूड सी बात है कि स्लीपिंग ही करेंगे, पिलोज के साथ सोएंगे, लेकिन कई लोग दूसरा है प्लेइंग पिलोज, फाइटिंग पिलोज है ना, फाइटिंग से थोड़ा उसका सेंस और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, इसकी विशेषता थी कि फाइटिंग वाले पिलोज थे, ठीक है। तो फिर कहाँ से खरीद लाए आप? इंडियन आपने खरीदे थे, हाँ चलिए, ग्रेट। ओके, एनीवन एल्स? रुबिना, यू वांट टू ट्राई? Yes. बताइए। I brought I three elegant. I crossed 3 I brought, मैं लेके आई, I brought brought three elegant, large, sorry, elegant के बाद small to large, small, to large. small to large, ये अपने आप में एक बात है ना, small to large। So we cannot put this one. No, of course you can, small to large, मतलब वो ऐसा है कि वो छोटे से बड़ा हो रहा है, कोई चीज है, मतलब हमें पता, अभी तक तो सस्पेंस। New, oh god, small to large, new, sorry, straight, 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 सीधा, oh god, Blue, white, black. oh god, blue white, मतलब वो सामने वाला इंसान, sorry, once again, Russian, oh god, Russian, आगे थोड़ी आप आवाज कर, रशियन क्लॉथ, कपड़ा, क्लॉथ for carrying for keeping for keeping stuff के लिए, for keeping stuff, सामान रखने, keeping bag. Yes, bag. once again, Russian cloth, क्लॉथ के बाद बताइए, मैं समझ नहीं पाया। Russian cloth stuff keeping bag. क्लॉथ के बाद वाला वर्ड आप रिपीट करेंगे एक बार प्लीज मेरे लिए? मतलब वो छोटे छोटे चीजें होते हैं ना, लाइक ऑफिस पर्पस के लिए, कभी
कुछ रखने के लिए स्टड्स स्पेलिंग बताइए। STA Stus STU no I don't know this word. No sir. ST Sir then office ST STASS that's what you're saying. Not the double S sir. S for fork. ओ आप क्या स्टफ कहना चाह रहे हैं कि STUFF? Yes. Oh, yes, stuff, yes. stuff, stuff, saman, stuff. Okay. Keeping back. Yes. Stuff keeping back. Okay, अच्छा. All right. ये आपने उसकी क्वालिटी उसकी वो बता दी पर्पस कि भाई वो सामान डालने का बैग है. Oh God. ये कहाँ से खरीदा आपने? ये तो बताना पड़ेगा आपको. Sir, रशिया गए आप जाके? हाँ नहीं वो इसलिए पूछना चाह रहा था खरीदा भी वहीं से ही आपको पौंडीचेरी में मिल गया था रुबीना, इसलिए मैं पूछना चाह रहा था. सर मैंने ये बनाया, खरीदा नहीं है. And I'm just kidding, I know. So yeah, that's true. It's the one that you would always create from your side. Chali. Okay, let's move ahead now. So in terms. Sir, is it okay, sir? Yeah, absolutely. Yeah. So I'll just change it because I think I'll have to put this R and this I capital Indian. Yeah. So Russian cloth. Yeah. So बड़ा लंबा सा है. So I brought 3 elegant, small to large, new, straight, blue, white, black Russian cloth stuff keeping bag. Not easy. Great. Yeah. Grammatically ठीक है एकदम रुबीना. लेकिन सही में दिमाग एकदम ऐसे घूम जाएगा. वो आदमी या इंसान सोचेगा ना कैसा होगा वो बैग. तो इतना आपने उसको आप वहां ले गए, फिर यहाँ ले आए, फिर वहां ले गए, फिर यहाँ ले आए. उसको इतना घुमा दिया आपने, रशिया ले गए, रंगों में ले गए, फिर आपने उसको छोटा बड़ा साइज कर दिया. सो दैट्स ट्रू, उसकी विशेषता है. तो यही तो है बात. ओके, एनीवन एल्स? वन लास्ट वन, एनीवन वांट्स टू ट्राई? Yes, sir. ओके, अरबाज बताइए. I bought two beautiful large large blue old model for long drive. sorry German car. Long drive. ये मुझे नहीं समझ आया. long For long drive. for long नहीं, आप स्पेल कीजिए मुझे आपका वो. I bought 2 beautiful large blue old model German car. German cars. Okay, wonderful, great. Anyone else would like to try? कोई और ट्राई करना चाहे तो फटाफट से. ओके, मानसी बताइए क्या है आपका वाक्य? I bought. सुनिए इस शब्द को सब लोग बोलिए bought. हाँ bought है ना, bought. ठीक है, बताइए मानसी. I bought one beautiful. तो हम वन की जगह क्या करें? अ लगाएं. अ ब्यूटीफुल. Pink American soft plain dog. पिंक. American. पिंक के बाद समझ में नहीं आ रहा मुझे. पिंक American. अमेरिकन. ओके, पिंक अमेरिकन. अच्छा, पिंक अमेरिकन. Soft plain. पिंक अमेरिकन सॉफ्ट. Soft plain dog. सॉफ्ट प्लेइंग बॉल्स. आप मुझे बताइएगा ये सॉफ्ट बोल रहे हैं क्या आप? Yes, yes. ठीक है, सॉफ्ट प्लेइंग Sir, बॉल. ball से हाँ ball बॉल से- होगा, आप सही कह रहे हैं क्योंकि एक ही है तो बॉल हो जाएगा. बॉल, राइट. ठीक है, परफेक्ट. आई जस्ट सी सॉफ्ट इज नहीं, पर आपने सॉफ्ट जो है वो आपका ओपिनियन है. सॉफ्ट हम देखिए, हमने देखा था कि सॉफ्ट को कहाँ डालेंगे बताइए. सॉफ्ट कहाँ आएगा? मटेरियल
मटेरियल में डाल रहे हो आप उसको सॉफ्ट में? तो मटेरियल तो देखिए वुड होगा, ग्लास होगा, उसका वो किस चीज से बना है वो होगा। तो सॉफ्ट कॉट आप फिर सॉफ्ट कॉटन बोल दीजिए उसको, सॉफ्ट कॉटन, ताकि क्या है वो कॉटन की भी विशेषता होगी और वो कॉटन सॉफ्ट कॉटन हो गया, है ना, सॉफ्ट कॉटन, सॉफ्ट कॉटन प्लेइंग बॉल, परफेक्ट। ऑलराइट, एनीवन लास्ट? नो, इज दैट ओके? चलिए, साक्षी वांट टू से समथिंग? Yes, sir. हाँ। I will try. बताइए। I will do some includes, but not all. ओके, हाँ कोई बात नहीं, बताइए। I saw मैंने क्या देखा? two. टू Beautiful टू ब्यूटीफुल old ओल्ड tall टॉल, टॉल ठीक है, Italian इटालियन ओके, men. men, ऑलराइट। आई सॉ टू ब्यूटीफुल ओल्ड टॉल इटालियन मैन, ओके। वो ब्यूटीफुल भी हैं, वो ओल्ड भी हैं, टॉल भी हैं, इटालियन भी मैन। वैसे हम नॉर्मली ब्यूटीफुल हम बोल सकते हैं मैन के लिए भी, सुंदर के हिसाब से आपने कहा है ना, लेकिन हम अंग्रेजी में आपको हैंडसम यूज करते हैं, हैंडसम। Yes, लेकिन ठीक है, ब्यूटीफुल मतलब सुंदर है, मतलब सुंदर है, राइट। तो उस हिसाब से जनरली लोग मना करते हैं कि ब्यूटीफुल नहीं यूज करते हम आदमियों के लिए, महिलाओं के लिए ब्यूटीफुल और पुरुषों के लिए हैंडसम। बट ठीक है, कई बार लोग ब्यूटीफुल भी यूज करते हैं, मतलब ओवरऑल उनकी जो अपीयरेंस है वो ब्यूटीफुल थी इस वजह से। सो आई सॉ टू ब्यूटीफुल और टू हैंडसम ओल्ड टॉल इटालियन मैन, ओके। चलिए, परफेक्ट। कोई और डाउट है इसमें? क्लियर हो गया? तो ये एडजेक्टिव का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको ध्यान रखना है कैसे हम इन विशेषणों को रखते हैं। अब हम एक फटाफट एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे, वो है एडवर्ब। एडवर्ब, बताइए क्या होते हैं एडवर्ब्स, जो क्या करते हैं, बताइए। एडवर्ब जानते हैं कोई? सर किसी चीज से गुण होता है, मतलब क्या चीज अरबाज? पावर हो गया सर। क्या हो गया? क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता बताना, क्रिया विशेषण बहुत सिंपल है, राइट। बिल्कुल ठीक है। वर्ब इसमें छिपा हुआ है ना, इसमें देखिए वर्ब की में ऐड करता है। और क्या क्या शब्द होते बताइए, आई एम श्योर आपको बताऊंगे जिसमें, हाँ Firstly, बिल्कुल, एग्जैक्टली राइट, या सो दैट्स करेक्ट। सो यू वुड से स्लोली, सॉफ्टली, क्वाइटली, रेगुलरली, बस जिसमें ली लग जाए वो हमारा विशेषण होता है क्रिया का। और ये हमेशा किसके बाद रखा जाता है रुबीना? इट्स ऑलवेज प्लेस्ड आफ्टर द वर्ब। सो शी स्पीक्स सॉफ्टली, ही पेंट्स ब्यूटीफुली, तो जिसमें भी ली लग जाएगा वो हमारे एडवर्ब हो जाएंगे। फटाफट एक एक वाक्य बनाइए, सब लोग छोटे छोटे वाक्य बना सकते हो। शी स्पीक्स ब्यूटीफुली, वो बहुत खूबसूरती से बोलती है, बताइए कोई भी। पास्ट नहीं नहीं, एक सेकेंड अरबाज, एक सेकेंड, पहले हाथ रेस कीजिएगा जिसको बोलना है, मैं अनम्यूट करने के लिए बोलूंगा। जो दीप्ति का प्रश्न है, पास्ट में आइए, पूछना दीप्ति सवाल। दीप्ति, हाँ वो नहीं, कोई भी टेंस में आ सकती है। उदाहरण के लिए आई स्पीक प्रेजेंट टेंस है, आई एम स्पीकिंग प्रेजेंट कंटिन्यूस है, आई स्पोक पास्ट हो गया। अब कहीं पे भी हो लेकिन उसके आगे डाल दो ना आई स्पीक सॉफ्टली, मैं बहुत धीमा बोलता हूँ, सॉफ्टली, सॉफ्टली, और मैं बहुत धीमा बोल रहा हूँ, आई एम स्पीकिंग सॉफ्टली, मैं बहुत धीमा बोला, आई स्पोक सॉफ्टली। तो आपको टेंस की टेंशन नहीं करनी है, आपको बस ये देखना है दीप्ति कि आपको सॉफ्टली काम में लेना है हर टेंस में फिर, ठीक है। चलिए दीप्ति आपसे चालू करते हैं एक वाक्य। हाँ, आई कुक अरे वाह, आई कुक परफेक्टली। चलिए ये तो आपने अपनी तारीफ करते हुए वाक्य बनाया, बड़ा अच्छा है। आई कुक परफेक्टली। फिर कोई किसी को कुछ कहना है, मत कहना है,
कोई बात नहीं, आई कुक परफेक्टली, वंडरफुल। चलिए और बताइए कोई और। वी हैव अरबाज। she runs fastly. Okay, yeah, fastly has an issue because she runs fast is what you would say, right? She runs fast. So that's how we say. हम उसको बोलते हैं she runs fast. हम fastly avoid करते हैं, right? She runs fast. वो तेज भागती है। वो तेजी से भागती है, नहीं वो तेज भागती है ना। So she runs fast. ये हम बोलेंगे। तो और कोई ट्राई कीजिए अरबाज। She speaks slowly. हाँ, she speaks slowly. वो बहुत धीमा धीमा बोलती है। Okay, next, I see Pranjal. She never tells lie. She never tells lie. तो इसमें यहाँ पे हमारा वो क्या है, एडवर्ब? नेवर। Yes, sir. और वो कौन सा एडवर्ब है? वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, राइट? फ्रीक्वेंसी का एडवर्ब है। वो चीज किस फ्रीक्वेंसी पे होती है? कभी नहीं होती। सो शी नेवर टेल्स लाई। ओके, ग्रेट। नेक्स्ट आई कैन सी मानसी। या मानसी बताइए। He ate the chocolate cake greedily. एक बार वापस बोलना पड़ेगा प्लीज आपको, मानसी। He ate the chocolate cake greedily. He ate the chocolate cake greedily. Yes, sir. greedily, greedily मतलब हाँ या सो उसने लालच के तरीके से, लालचपूर्ण तरीके से उसने केक को खाया। या आई थिंक दीप्ति ने एक मैसेज शेयर किया है, आई वांट टू स्पीक इंग्लिश नाइसली। नाइसली नहीं, फ्लुएंटली, वंडरफुली, अमेजिंगली, राइट दीप्ति? ओके, नेक्स्ट वी हैव रुबिना। The girl presented the topic systematically and calmly. सिस्टमैटिकली एंड कामली, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से। मुझे लगता है आपने अपनी पीएचडी की कोई बात बता दी हमारे को, ऐसा है? मतलब आपने अपना पेपर बहुत ही शांत तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से प्रेजेंट किया है, इसका मतलब। Supposed, right? Okay, great. Yeah, Sakshi. Yeah, they dances slowly. They dance. वो डांस करते हैं ना, they dance. Simple present tense, they dance slowly. Okay. आप बताइए अरबाज, कुछ आप बताना चाह रहे हैं और कोई? Yes, sir. सरिता बताइए। Her dress is very lovely. Her dress is very lovely. Is it? Yes, sir. अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग शब्द लेके आए ना, लवली। लेकिन इसमें क्या चेंज है? लवली। अब सरिता ने ये सोचा कि सर ने कहा ली आना चाहिए एंड में, तो काम अपना चल जाएगा। हर ड्रेस इज लवली। तो यहाँ पे लवली क्या है? विशेषण है या क्रिया विशेषण है? एडजेक्टिव है या एडवर्ब है? सरिता आप बताओ। एडवर्ब है। तो एडवर्ब क्यों है? वो तो ड्रेस की विशेषता बता रहा है ना, किसी क्रिया की विशेषता कहाँ हुई? है ना, क्रिया की। देखो ड्रेस लवली है तो ड्रेस सुंदर है, लवली है, ब्यूटीफुल है, न्यू है, वो तो विशेषता हुई उस समय ड्रेस की। पर एक्शन, कोई काम होना चाहिए सरिता, उसके अंदर आना चाहिए। Sir, I go temple regularly. हाँ, I go to the temple regularly. Very good. एक और ट्राई कीजिए। कृष्णमन्यु आप नहीं बोल रहे कुछ भी बेटा, हाथ रेस करो, बताओ। और पहले आप बताओ सरिता, दूसरा। यस Sir, I will try. या बताइए मानसी। The door opens frequently. एक बार वापस बोली मानसी। The door opens frequently. We frequently This door opens frequently. this door opens frequently.
ठीक है, ये डोर फ्रीक्वेंटली खुलता है, परफेक्ट। और जो इन्होंने बात बोली थी सरिता ने, लवली, वो जो लवली है वो विशेषण है, क्रिया विशेषण नहीं है, तो हम उसकी जगह हम ब्यूटीफुली बोल सकते हैं ना, शी सिंग्स ब्यूटीफुली, नॉट शी सिंग्स लवली, नहीं वो बैठेगा नहीं। ओके, एक किसी और को कुछ कहना हो तो फटाफट हाथ रेस कीजिए। मानसी, आई एम सॉरी, रुबिना, आपको कुछ कहना है? अरबाज? No, sir. ओके, अरबाज? I read book carefully. हाँ, आई रीड बुक्स प्रॉपरली, मैं अच्छे से किताबें पढ़ता हूँ, परफेक्ट। कृष्णमन्यु, आर यू देयर? कृष्णमन्यु, कैन यू हियर मी? बताइए, हेलो, बताइए एक सेंटेंस। सर अपने बताइए। I हाँ, pass bicycle every day. आई पास, P fast FAST. FACE, नहीं FAST. I fast. oh आई फास्ट, मतलब मैं व्रत Yes, करना। sir. I pass bicycle ride every day. No, I am not getting your voice, absolutely not. Could you just repeat again? I, Yes, sir. I fast FAST. मैं एक बार लिख लेता हूँ स्क्रीन पे, है ना, उससे मेरे को भी समझ में आएगा और बाकी सबको भी समझ में आएगा। थोड़ी Yes, सी, sir. चलिए एक बार यहाँ लिखते हैं, आप बताइए। आई के बाद आगे FAST. FAST, Yes, sir. आई फास्ट, आगे Bicycle ride आई फास्ट बाइसिकल राइड, आगे every day. इसका क्या मतलब वो मैं समझ नहीं पाया, क्या कहना चाह रहे हैं आप? आई फास्ट बाइसिकल राइड एवरी डे, इस वाक्य का क्या मतलब है? सर ये कि कम से कम साइकिल तेज नहीं, चलाता हूँ। तेज चलाता हूँ साइकिल तेज। Then I like it bicycle fastly. अच्छा, फास्ट आपकी वो गति है, स्पीड है, वो कहना चाह रहे हो आप? ओफ, तो आई के बाद बेटा वर्ब आता है ना, आई राइड, और फिर हमारी संज्ञा, हमारे को सेंटेंस कंस्ट्रक्शन तो वी हैव लर्नड इट इन द वेरी इनिशियल क्लासेस। कृष्णमन, यू हैव टू बी वेरी श्योर विद दैट। आई, मैं क्या करता हूँ? राइड करता हूँ। किस चीज को राइड करता हूँ? बाइसिकल को राइड करता हूँ। और कैसे राइड करता हूँ? फास्ट। आई राइड बाइसिकल फास्ट, आई राइड फास्ट बाइसिकल, आई राइड फास्ट बाइसिकल एवरी डे, ये होना चाहिए, राइट? फास्ट। Fastly होगा then. अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, देयर इज नो सच वर्ड कॉल्ड फास्टली। अंग्रेजी में हम इस शब्द को काम में नहीं लेते, फास्टली, है ना, हमारे दिमाग में तो आता है फास्टली, पर फास्टली कुछ नहीं होगा, फास्ट होगा, राइट? बाकी स्लोली होता है, रैपिडली होता है, सब में चलता है, इसमें नहीं चलता। ओके, Sir, I want to speak one sentence. या बताइए, Sir, they did work haphazardly. या टेल अस। They did work haphazardly. They did the work haphazardly, right? Perfect, perfect. Okay, great. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है, सिंस ये टॉपिक्स देखिए आपको क्या इनके, आपको पता है ये सारी चीजें, बट बात ये है कि आपको समझना है कि हम कैसे इनको क्या कहते हैं, भाई ये चीज है, और उसको एडजेक्टिव बोलते हैं, उसको एडवर्ब बोलते हैं, ये हमारे को समझ में आना चाहिए। ओके, अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और एक बहुत सिंपल सा टॉपिक करवाता हूँ। उसका नाम है, द टॉपिक इज कॉल्ड इम्पेरेटिव फॉर्म्स। नाउ व्हाट इज इम्पेरेटिव? इम्पेरेटिव होता है जब आप ऑर्डर देते हैं ना, ऑर्डर देते हैं, उसको बोलते हैं इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव्स, इम्पेरेटिव कैसे होता है? जैसे आपको अपने फ्रेंड को बोलना है ईट, मतलब क्या होता है ईट का मतलब? हाँ, नहीं, टू ईट नहीं है, मैंने ऑर्डर दिया उसको, ईट, खा, खाओ। खा। अच्छा, बंद कर, गेट को बंद कर, क्लोज द डोर, राइट? ओके, हमें इस चीज में ध्यान रखना है एवरीवन कि आप सिर्फ एक वर्ड बोलेंगे, उसमें आप यू नहीं लगाएंगे, सिर्फ वो क्रिया जो है वो रखेंगे और वो जो चीज उसको करवानी है। अच्छा, बैठ जा, सिट डाउन, खड़ा हो जा,
Get up. Get up. Stand up. Get up. Okay. Then जनरली हम लोग ये एक्सक्लेमेशन के साथ लगाते हैं क्योंकि हम उसको कहते हैं, राइट? ओके, सॉरी, स्पीक आउट. हाँ, स्पीक आउट, बोलो, स्पीक आउट, यू नो. Go fast. गो फास्ट. हाँ, जल्दी जाओ, गो फास्ट. इतनी देर से बैठे हो, गो फास्ट. परफेक्ट. तो ये सारे हो गए हमारे इंपेरेटिव. इसके नेगेटिव देखते हैं पहले एक बार. Speak loudly. हाँ, स्पीक लाउडली. हाँ, सुनाई नहीं दे रहा. स्पीक लाउडली, स्पीक लाउडली, राइट. स्पीक लाउडली. आप क्या कर रहे हो इसके अंदर रुबिना? आपने वो भी जोड़ दिया इसके अंदर, एडवर्ब. स्पीक लाउड, स्पीक लाउडली, स्पीक अलाउड. स्पीक लाउडली और स्पीक अलाउड दोनों ठीक है, राइट? अच्छा, अब इसका नेगेटिव करते हैं. ईट का नेगेटिव क्या होगा? खा का. मत खा. कैसे बोलते हैं सरिता? मत खा. डोंट ईट. हाँ, डोंट ईट. ओके, गेट मत बंद कर. कृष्णमन्यु. Don't close the door. हाँ, Don't close the door. डोंट क्लोज द डोर. डोंट क्लोज द डोर. वेरी गुड. आपको डोंट लगा, राइट? डोंट क्लोज द डोर. इस तरीके से मैं लिखता नहीं हूं, आपसे पूछता रहता हूँ. सिट डाउन. बताइए. सिट डाउन. Not sit down. डू नॉट सिट डाउन. नीचे मत बैठ. डोंट सिट डाउन. ओके, एंड देन गेट अप. Don't get up. Don't get up. बैठे रहिए. अरे, don't get up. Don't get up. बैठे रहिए. Don't get up. Okay. बोल. Yeah. Don't मत बोलिए. Don't Yeah. speak out. Don't speak out, right? And then don't go fast. इतना जल्दी जल्दी मत जाओ. Don't speak loudly. इतना जोर से मत बोलो. Don't speak aloud. Aloud and loudly are same. जोर से मत बोलिए, right? हाँ, don't लग जाएगा, है ना, सबके अंदर. बहुत सिंपल है इसके अंदर don't लगने से ही. अब एक हमें एक वाले वर्ब्स भी पता होने चाहिए एवरीवन, जिसके अंदर हमें रिफ्लेक्शन आता है. जैसे हम लोग बोलते हैं बिहेव योरसेल्फ, राइट? रजिस्टर योरसेल्फ. आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसे इंपेरेटिव्स हैं दीप्ति जिनमें योरसेल्फ लगेगा. जब आप कभी किसी को कहते हैं ना बिहेव योरसेल्फ, लगाना पड़ता है. बोलते हैं ना हम इसको, प्रवीणा, बिहेव योरसेल्फ. Yes. हम कभी ये नहीं कह सकते बिहेव, बैठा नहीं मामला. बिहेव योरसेल्फ. उसी तरीके से दीप्ति, रजिस्टर नहीं, डू योरसेल्फ इज अ डिफरेंट थिंग. डू योरसेल्फ तो अलग चीज हो गई. वो होता है डू से है, अपने आप कीजिए. वो जो आप कह रहे हो ना डू योरसेल्फ, वो इसी कैटेगरी का है. डू योरसेल्फ वो अलग है. उसका मतलब होता है अपने आप कीजिए, अपने आप कीजिए. यहाँ पे अपने आप कीजिए है, और वहां पे होता है वो अपने आप को बिहेव करवाइए ढंग से, अपने आप को रजिस्टर करवाइए. आप समझे फर्क इसमें दीप्ति? वो था डू योरसेल्फ. डू योरसेल्फ का मतलब क्या होता है? अपने आप कीजिए, अपने आप कीजिए, हम नहीं हेल्प करने वाले. और बिहेव योरसेल्फ होता है अपने आप को बिहेव ढंग से करवाइए, अपने आप को रजिस्टर करवाइए. आप समझ गए? इसमें सेंस अलग है, राइट? तो इंग्लिश में होता है ना एक, ये जानते हैं हम बोलते हैं ना इसको, पूरा क्या बोलते हैं? टेक केयर. अपना ध्यान रखिए. ये होता है पूरा, लेकिन हम बोलते ही नहीं. हम बोलते हैं टेक केयर. तो वो सामने वाला पूछ सकता है किसका टेक केयर करूं, खुद का करूं कि दूसरों का करूं? नो नो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. तो ये वाला होगा, ध्यान रखिएगा हमेशा इसको इस तरीके से. या फिर हम कहते हैं एक, ये बहुत बोलते हैं हम लोग, एंजॉय योरसेल्फ. तो पूरा जो होता है ना दीप्ति, वो यही होता है, एंजॉय योरसेल्फ. लेकिन हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं एंजॉय एंजॉय एंजॉय. तो ये ध्यान रखिएगा एवरीवन, आपको हमेशा सेल्फ लगाना पड़ेगा इस प्रकार के इंपेरेटिव्स के अंदर. जब कभी भी हम देखते हैं कि ये हमारे को उसी व्यक्ति के ऊपर ही असर आ जाएगा, राइट? ओके, सो ये आपको ध्यान रखना है कि आप इसको इस तरीके से काम मिलेंगे. अब हम एक और देखते हैं इसका नेगेटिव. बिहेव योरसेल्फ का नेगेटिव
Don't behave yourself. हाँ कोई बात नहीं, मत मत मानो मेरी बात, करो जो करना है, डोंट बिहेव योरसेल्फ, कोई बात नहीं, मत अपने आप को रजिस्टर करवाओ। Don't register your. हाँ डोंट रजिस्टर योरसेल्फ, वो वाली बहुत खराब स्कीम है, उसमें मत रजिस्टर कर लेना, बहुत पैसे लग जाएंगे तुम्हारे। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नेगेटिव। Don't take care of yourself. हाँ कौन बोलेगा ऐसे, पर ठीक है, नाराज हो गए, इतना समझा दिया, ध्यान नहीं रखते हो तुम लोग अपना, तो डोंट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नो नो मत करो, एक काम करो, मत करो। और अंत में Don't enjoy yourself. हाँ डोंट एंजॉय योरसेल्फ, एग्जाम है इंग्लिश का कल, सो पढ़िए। अरे कल हमारा एग्जाम है, याद है आपको? स्टोरी का एग्जाम। स्टोरी का एग्जाम है। दीप्ति ने तो बहुत क्लियरली कहती है सर और कोई एग्जाम लेने की आपको जरूरत नहीं है, हम सिर्फ स्टोरी का दे सकते हैं बस। नहीं, पूरे कोर्स का एग्जाम है कल, आप लोग ओके हैं? देखते कितने हाथ रेज होते हैं ऊपर। There's just one hand coming up, okay? No, एग्जाम हर दिन है। हाँ और टाइम स्लॉट बढ़ जाएगा, ठीक है। सुनिए, तो एग्जाम तो हर दिन है, कल नहीं है एग्जाम, कल तो सिर्फ जो दीप्ति ने कहा सबको अपनी अपनी कहानियां सुनानी है उन 20 शब्दों वाली, और हिंदी में ट्रांसलेट भी करना है। सवाल ये है कि हर दिन एग्जाम है, हर दिन हमें अंग्रेजी बोलनी है। What is happens at now? How to make of this story? That is what the beauty कोई of। story में fit नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा रुबीना? कोई स्टोरी में सेंस नहीं आ रहा ऐसा? हाँ, fit ही नहीं हो रहा। तो आपको फिट करना पड़ेगा ना। देखिए उसने कैसे फिट किया, उसने एंड में अपनी बिल्ली का नाम मून निकाल दिया। तो फिर आप भी अपने वो, आप भी बिल्ली का नाम कुछ निकाल दीजिएगा एंड में, तो तभी तो स्टोरी का सेंस बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये आपको क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट टॉपिक अभी का करवाता हूँ और फिर हम एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी करेंगे अगर टाइम परमिट करेगा तो। एक लास्ट है कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में क्या होता है? Let's put an E here. Comparative and superlative. So comparative and superlative में क्या होता है? जब आप दो को कंपेयर करते हैं, इसका क्या मतलब है? सिल्वी इज टॉलर देन सोफी। सिल्वी सोफी से ज्यादा लंबा है। हाँ, ज्यादा लंबी है, राइट? ज्यादा लंबी है। हाँ, सिल्वी एक गर्ल का नाम है, सोफी एक गर्ल का नाम है ना। सिल्वी इज टॉलर देन सोफी, क्या मतलब है इसका? हाँ, सिल्वी सोफी से लंबी है, ठीक है। अगर सोफी इज, तो इसका मतलब हो गया सोफी इज शॉर्टर, सोफी इज शॉर्टर देन सिल्वी। ये भी बात ठीक है एवरीवन? मानसी समझ में आती बात? वो टॉलर है तो शॉर्टर होगी, तो हमें हमेशा अंग्रेजी में कंपेयर करते समय क्या करना है? ईआर लगाना होता है। शॉर्टर, टॉलर, प्रिटियर, प्रिटियर ज्यादा सुंदर, प्रिटियर, और विच वन अरबाज? ग्रेटर, ग्रेटर, ही इज ग्रेट, मोर ग्रेट, ग्रेटर, ही इज ग्रेटर, 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 फास्टर, ग्रेटर, और बेटर। मानसी क्या बोला आपने? स्मॉलर, 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 वेरी गुड। अच्छा, ब्यूटीफुल का क्या होता है? इंटेलिजेंट का क्या होता है? हाँ, वेरी गुड। स्मार्टर तो काम में ले सकते हैं, पर जो रुबीना ने कहा कई बार ऐसे शब्द होते हैं ब्यूटीफुल। मान लीजिए, वैसे तो हमको ऐसे कहना नहीं चाहिए कि भाई सिल्वी ज्यादा सुंदर है, सोफी कम सुंदर है, दोनों अपने आप से सुंदर है, पर सीख रहे हैं पढ़ाई में, क्या करें, मजबूरी है, सिल्वी और सोफी को कंपेयर करना पड़ेगा। तो ये कहना पड़ जाए, मान लो ये सिल्वी ज्यादा सुंदर है सोफी से, तो सिल्वी इज इन द क्लास, बट इस दुनिया में तो होंगी ना सोफी और सिल्वी। रुबीना कोई हमारा वीडियो देखेगा तो फिर पता नहीं, आप आजकल ये है कि आप किसी का नाम ले लिया और उसने फील कर लिया कि आपने मुझे कम सुंदर कैसे कहा, उससे बताइए।
सो इसलिए हमारे लिए सोफी और सिल्वी दोनों ही एक समान है और दोनों ही बहुत ही खूबसूरत है, बट सिल्वी और सोफी का पूरा सम्मान रखते हुए उन्हें ये कहते हुए कि हम सिर्फ एक ग्रामेटिकल सेंटेंस देख रहे हैं, इसलिए हम एक को कम और एक को ज्यादा सुंदर कहेंगे। सो सिल्वी इज डैश ब्यूटीफुल देन सोफी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, आप ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे शब्द होंगे अरबाज जिनके अंदर हम ब्यूटीफुलर, इंटेलिजेंटर ये सब नहीं लगा पाएंगे, यू नो इट राइट, तो उसमें हमको मोर लगाना पड़ेगा। सो मोर, सो सिल्वी इज मोर ब्यूटीफुल देन सोफी, यानी सिल्वी ज्यादा सुंदर है सोफी से, राइट। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो अगर, और सोफी जो है वो ज्यादा होशियार है, बताओ सोफी ज्यादा होशियार है, सोफी को भी खुश कर देते हैं कि सिल्वी से कम वो होशियार इज मोर परफेक्ट, इज मोर इंटेलिजेंट देन सिल्वी, राइट। तो आपको ध्यान रखना है, कंपेयर करने में आपको या तो ER लगाना है, डार्कर, स्मॉलर, फास्टर, स्लोअर, अन्यथा मोर लगा के भी अपनी हम काम कर सकते हैं। और अगर मैं सुपरलेटिव में जाता हूं, सुपरलेटिव, सुपरलेटिव का क्या मतलब है रुबीना, दीप्ति? यानी वो सबसे ज्यादा वही है, सबसे टॉल भी वही है, सबसे सुंदर भी वही है, सबसे होशियार भी वही है। सो सिल्वी इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, वो सबसे लंबी लड़की है इन द क्लास। सिल्वी इज द टॉलेस्ट, इज द टॉलेस्ट गर्ल या इज द टॉलेस्ट इन द क्लास, परफेक्ट। तो हमको द लगाना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, या दी बोल सकते हैं क्योंकि आप उसको बिल्कुल आप फाइनल दे रहे हैं। इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, या फिर सिल्वी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल। वहां पे जो हमने ब्यूटीफुल के पहले मोर लगाया था तो यहाँ पे मोस्ट हो जाएगा, इज द मोस्ट ब्यूटीफुल इन द क्लास। One of the teacher in the world. Yeah, one of the, You are yeah, one of the teacher in the world. you are one of the, है ना, one of the एक किस में से, one of the most talented one of the most talented students, one of the most talented students of our class। अब इसमें क्या होता है, आप हैं, आप क्या हैं, वन है, एक हैं, किस में से एक हैं, वन ऑफ द, ऑफ मतलब से, आप एक हैं किस में से, वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड, जो हमारा ग्रुप है ना मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स का अरबाज, उसमें से आप एक हैं, यू आर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड स्टूडेंट्स ऑफ आवर क्लास। क्लियर हो गया आपको, राइट? चलिए अब आगे मैं एक एक्टिविटी लेके आया था आपके लिए, मैं अब देखता हूँ इसमें आपको फटाफट से मैच करना है। सब लोगों के नाम भी लिख देता हूँ, किसको क्या मैच करना है। दीप्ति, अरबाज, साक्षी, रुबीना, आपको मैच करना है आगे। देन वी हैव सरिता, then we have Krishnamanu, and then we have I'll just see if I shouldn't miss anyone. Then we have Manshi, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही लोग हैं हम, और फिर हम रिपीट कर देते हैं, अरबाज, रुबीना एंड दीप्ति। चलिए फटाफट से बताइए कौन सा क्या मैच होता है, सेंस बनना चाहिए इसमें। Sir, the sun rises in the east. ओके तो दीप्ति ने चालू कर दिया है काम, ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो दीप्ति का था द सन राइजेस इन द ईस्ट, बिल्कुल ठीक है। क्या मतलब होता है इसका? सूरज से उगते हैं। ठीक है। दूसरा अरबाज बताइए। I enjoy reading book on my way to school. ओके मैं किताबें पसंद करता हूँ, पर आप दूसरे भी देखो अरबाज, क्योंकि हो सकता है कि ये वाला जो है ना ऑन माई वे टू स्कूल, ये किसी और से ज्यादा बेहतर। In the morning before breakfast. I enjoy reading books, आप कह रहे हो अरबाज, in the morning In the before morning breakfast। before breakfast. ओके ये वाला ऑप्शन। अच्छा, और कोई ऑप्शन, कोई और बताना चाहेगा? Anyone? Yeah, because it helps. हाँ वेरी गुड, हाँ ये बात एग्जैक्टली। चलिए आगे। She loves to sing, साक्षी।
Yes, sir. She loves to sing to her favorite song. She loves to sing to her favorite song. Yes, sir. I like to. I listen to music. Okay. She loves to sing to her. She To loves. her favorite song. Okay. ठीक है. We can keep it for a while. Okay. Yeah, Rubina. They went to the market. Buy some fruits and vegetables. They went to market to buy some fruits and vegetables. So ये हो गया हमारा 4 का, या 4 डाल देता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ. Okay. मैं एक काम करता हूँ, उसको बैक करके मैं आपने जो बताया ना. ओके, तो इन्होंने बताया ये 1 हो गया, ये हो गया हमारा 2 और ये हो गया 4. और बताइए, और इन्होंने आपने बताया शी लव्स टू सिंग टू हर फेवरेट सॉन्ग्स. Yes, sir. I listen to music. I was reading. And it is raining outside. They went to market. No, I think that will. Does he plays football? To her favorite. No, she loves to sing. When it is raining outside. Yeah, but फिर इसके साथ क्या जाएगा? John walks. The cat is sitting. I was reading a book. We will Sir, say- in the morning before breakfast. Okay. John walks in the morning before breakfast. No, but then she loves to sing के साथ खूब सारे मैच हो रहे हैं, लेकिन टू हर फेवरेट सॉन्ग्स के साथ क्या मैच हो रहा है ये भी तो देखिए. 1 कट गया, 2 कट गया, ठीक है, ये कट गया. एक बार इसको आगे बढ़ते. ही प्लेज फुटबॉल. ये बताइए सरिता. ही प्लेज फुटबॉल. He plays football to the park every day. 2 तो नहीं आएगा. D वाला नहीं है? नहीं. Every weekend. नहीं, हाँ एवरी वीकेंड. ये क्यों 2 नहीं है? ही प्लेज फुटबॉल 2 नहीं आएगा. 2 फुटबॉल का 2 नहीं आएगा ना, तो ये आ जाएगा ही प्लेज Sir, फुटबॉल. when it is raining outside. हाँ वो भी बैठ सकता है व्हेन इट इज रेनिंग आउटसाइड. पर बारिश में भीग नहीं जाएगा, बीमार नहीं हो जाएगा वो रुबिना. अब फुटबॉल खिलाओगे उसको उस टाइम पे. हाँ ओके. Sir, grandfather weekend में जाना होगा ना? अच्छा ठीक है. ओके. ओह या दैट्स इट्स गोइंग टू बी रियली क्लमजी. कोई ना कोई सेंटेंस तो गड़बड़ या अजीब सा निकलेगा. ओके आगे बढ़ते हैं. कृष्ण यू वी विजिट आवर ग्रैंडपेरेंट्स. Listen. Yes. To the park every day. To the park every day. We visit our grandparents to the park every day. हाँ तो ये ठीक है कि हम वीकेंड पे पेरेंट्स उनको मिल लेते हैं, इनकी बात ठीक है. और वो जो खेलने की बात थी ना, फुटबॉल खेलने का, वो बाहर बारिश के समय कर लेते हैं. एक बार देखते हैं फिर और कुछ सेंसिबल बनेगा तो. अच्छा नेक्स्ट मानसी. द कैट इज सिटिंग. Near the window. बिल्कुल ठीक है, वो तो खिड़की के पास बैठी है. ओके आगे अरबाज. आई लिसन टू म्यूजिक. To her favorite songs. ओ वो तो हो गया है. On the way to school. हाँ ऑन द वे टू. बिल्कुल ठीक है, मैं संगीत सुनता हुआ जाता हूँ ऑन द वे टू स्कूल. ओके जॉन वॉक्स. रुबिना. To the park every day. जॉन वॉक्स टू द पार्क. हाँ वो पार्क. और क्या ऑप्शन रह गया है हमारे पास? इन द मॉर्निंग. In the morning before. हाँ तो नहीं sir, in the park every day हो गया. I was reading book. ये in the morning before breakfast. ओके आई वाज रीडिंग अ बुक. या दैट्स करेक्ट. सो जॉन वॉक्स टू द पार्क. वो पार्क तक जाता है ना, पार्क तक जाता है. और लास्ट वाला हो गया ये वाला. आई वाज रीडिंग अ बुक इन द मॉर्निंग बिफोर ब्रेकफास्ट. ठीक है, क्लियर है सभी को? Breakfast. राइट. ऑल राइट. सो आपके लिए थोड़ा सा होमवर्क है. ये हमने वाक्य भी देख लिए हैं. यहाँ पे एक जंबल स्टोरी है जिसको हम कल ट्राई करेंगे, इसको सुलझाएंगे. इसका ऑर्डर भी है हमारे पास. और ये कुछ शब्द मैं दे रहा हूँ आपको, कल की क्लास में हम इनको यूज करेंगे और हम बनाएंगे सेंटेंस स्टोरीज बनाएंगे. कैसे? हम जैसे चालू करेंगे रुबीना से. रुबीना बॉय से चालू कीजिए. तो रुबीना कहेंगी वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय. दीप्ति ही लाइक टू क्लाइंब अप ऑन द ट्री. Arbaz, and on the tree he used to play with the ball. अच्छा play already use कर लिया. Sakshi, one day when he was playing with his ball, he had a beautiful smile. He got a beautiful. उसको एकदम से हंसी आई. You know, उसके चेहरे पे एक स्माइल आई. So ऐसा वो कहानी इन्वेंट करनी है. ठीक है रुबिना, क्लियर है? Yes, yes, yes. ये कल करेंगे तो इन शब्दों को आप पढ़ के आइएगा
और फिर हम कल आपको एक दो और टॉपिक बच जाते हैं ग्रामर के, जो लास्ट वाले हैं उनको हम आपको पढ़ाएंगे, और फिर कल आपसे सुनेंगे आप सभी की कहानी उन 20 शब्दों के साथ, राइट? सो डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी? No, sir. No? sir. All right, so we'll catch up tomorrow, the last time, and then we'll try to share our feedback as well. I have a request. Yeah, tell me. Could you just walk us just between the 30 minutes or summary or something like one sentence? Could you like have concisely and can you tell like this? Regarding Model verb. modal verbs. What are Model verb. what are modal verbs? ये आप पूछना चाह रहे हैं कल की क्लास में? हाँ exactly model verb like उसका जो है ना सब कुछ हाँ एक साथ में एक summary के टाइप का ठीक है, एक मतलब 10 minutes का एक बोल सकते हैं ठीक जैसे ठीक ठीक, लेकिन मैं नहीं, आप भी तैयारी करके लाएंगे, आप सब लोग मेहनत करेंगे। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? कैन, कुड, शैल, शुड, विल, वुड, याद है आपको? मस्ट, माइट, में सारे थे, ऑट टू, हैव टू, ये सारे मॉडल वर्ब्स हैं जो बीच में आते हैं, राइट? हमने कुछ एक देखे थे जो जरूरी थे, तो वुड देखा था, कुड देखा था, कैन देखा था, हमने शुड देखा था, तो ये सारे हमने देखे थे, और विल तो हमने देखा ही था टेंसेस के अंदर। चलिए, तो कल एक बार इस पर और चर्चा कर लेंगे हम रुबीना, आप लोग भी पढ़ के आएंगे, राइट? So tomorrow we'll catch up one final time, and I wish you all a great evening and see you tomorrow. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Take care. Yeah, you too. Have a great evening.